your Bibles, can you just take it up and rise up to your feet? Let's read the Word of God. And अगर आपके पास आपका बाइबल है तो आइए हम बाइबल को ले अपने पैरों के बल खड़े हो जाएं, साथ में मिलकर उस वचनों को anyone पढ़ें। celebrating birthdays, anniversaries this week? कोई है? You can open your Bibles to the book of Ephesians, chapter 1, इफिसियों की पत्री इसका पहला अध्याय में आइए verses 3 to 14. और तीसरे वचन से 14वें वचन तक। I'm going to read from Ephesians 1, 3 through to verse 14. इफिसियों इसका पहला अध्याय तीसरे वचन से लेकर 14वें वचनों तक। I'll read it in English. You can follow it in your Bibles. और मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और आपने लगातार की बाइबल में आप देख लें। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, which He made to abound towards us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is a guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. Amen. Amen. We are speaking about the role of the Father, the Son, and the Holy Spirit in our inheritance. और हमारी विरासत को प्राप्त करने में पिता परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का कार्य के विषय में हम अध्ययन कर रहे And I हैं। highlighted this truth that God the Father is the source of all blessings. और इस बात पर मैंने प्रकाश डाला कि हमारे सारे आशीर्वाद का स्रोत जो है वो पिता परमेश्वर है। Amen. आमेन। Come on, can we all say God the Father is the source of all the blessings in my life? क्या हम सब कह सकते हैं कि All the blessings in my life. मेरे जीवन के सारे आशीर्वाद का स्रोत पिता परमेश्वर है। And then Jesus Christ, the Son, is the manifestation of all the blessings. और यीशु मसीह जो पुत्र है सारे आशीर्वाद का प्रकट होना वो So the है। Father is the source, और इसलिए पिता वो स्रोत है and the Son is the existence. और वो पुत्र यानी यीशु उसका अस्तित्व है। Last week we meditated upon this. पिछले सप्ताह इस बात के बारे में हमने अध्ययन किया How the है। Father speaks, किस प्रकार से पिता बोलता है and the Son comes into existence. और पुत्र जो है अस्तित्व में आता है। Hallelujah. 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 Everything that the Father blesses us with, हर एक बात जिस बात से पिता हमें आशीर्वादित करता है the blessing is called Jesus. उस आशीर्वाद को यीशु कहते हैं Because every blessing is in Jesus. क्योंकि हर एक आशीर्वाद यीशु में है। When we hold on to Jesus, जब हम यीशु को धरे रहते we हैं are holding on to our blessing. यानी हमारे आशीर्वाद को हम धरे हुए हैं। Hallelujah. Hallelujah. When you open your Bible every day to meditate upon Jesus, जब यीशु पर अध्ययन करने के लिए रोज अपने बाइबल को जब आप खोलते हो you are actually doing some research on your blessing. वास्तविकता से अपने आशीर्वाद पर आप जरा जांच पड़ताल कर रहे हो। Hallelujah. Hallelujah. And today I want to talk about the third person of the Trinity, और आज त्रिएकता में तीसरे व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना the चाहूंगा। Holy Spirit. पवित्र आत्मा He is the activator of every blessing in our life. और हमारे जीवन में हर एक आशीर्वादों को लागू कराने वाला वही The है Holy Spirit is the activator. और पवित्र आत्मा ही वो लागू कराने वाला You है। can be seated now. आइए इस समय आप बैठ जाओ। God the Father is the source. पिता परमेश्वर वो स्रोत है Jesus Christ is the reality, the manifestation of every blessing. और यीशु मसीह वो वास्तविकता हर एक आशीर्वाद का वो अस्तित्व है And the Holy Spirit, He is the activator of every blessing. और पवित्र आत्मा हर एक आशीर्वाद को लागू कराने वाला Now है। let me give you
you an example. और मैं अब आपको उदाहरण देना Your चाहूंगा। body is sick. आपका शरीर बीमार है, You need a healing. आपको चंगाई चाहिए, You look to the Father and you pray. आप पिता की ओर देखकर प्रार्थना करते The हो Father speaks healing. और पिता चंगाई बोलता है, Rather, He has already spoken healing. और इसके बजाय उसने पहले ही चंगाई बोल चुका You know, है। last week we made this declaration. और पिछले सप्ताह इस कबूली को हमने किया। All our blessings have already been prepared 2000 years ago. हमारे सारे आशीर्वाद 2000 वर्ष के पूर्व तैयार किए गए When हैं। Jesus Christ came from heaven, और जब यीशु स्वर्ग से आया He came as a perfect and complete package of our blessings. और वो पूर्णता का, हमारे आशीर्वाद का पूर्णता का वो बक्सा है ना, पूर्णता की बात से आशीर्वाद के तौर पर I आया। believe like this. और मैं इस प्रकार से विश्वास करता हूँ, Jesus Christ is the last package or the last blessing that has come down from heaven. और यीशु मसीह ही वो अंतिम ऐसा आशीर्वाद है जो स्वर्ग से आया। After Jesus, nothing has come down from heaven. और यीशु के बाद स्वर्ग से कुछ भी नहीं आया। Because in Jesus, God the Father sent everything down. और क्योंकि यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने सारी बातों को हमारे लिए भेज दिया। Hallelujah. Hallelujah. So when you have a relationship with Jesus, और इसलिए जब यीशु के साथ आपका रिश्ता और नाता होता है, you are having a relationship with everything in heaven. तो स्वर्ग में सारी बातों के साथ आपका संबंध होता है। Hallelujah. Hallelujah. So you need a healing. और इसलिए आपको चंगाई God चाहिए। the Father has sent healing to us in the body of Jesus. और पिता परमेश्वर ने यीशु के देह में चंगाई पहले हमारे लिए भेज दी The है। Bible says in Isaiah 53 that by His stripes we are healed. यशायाह 53वें अध्याय में बाइबल बतलाती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। So Jesus' body has taken those stripes और इसलिए यीशु ने अपने देह में उन सारे कोड़ों को उसने मार and खाया our sicknesses are healed. और हमारी बीमारी चंगी हुई है। Now I still am sick, और तभी भी मैं अभी भी बीमार हूँ, but in Jesus my healing is there. लेकिन यीशु में मेरी बीमारी चंगी हो चुकी Now है। where is the work of the Holy Spirit? अब पवित्र आत्मा का काम यहाँ पर कहाँ The पर है? Holy Spirit works here. पवित्र आत्मा यहाँ पर कार्य करता The है। healing that is in Jesus चंगाई जो यीशु में है, activates that healing in our body. उस चंगाई को हमारे शरीर में वो लागू कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। There is no meaning or there is no blessing to me if all my blessings are in Jesus and not in my life. और सारे मेरे आशीर्वाद अगर यीशु में है और मुझ में नहीं है, तो मसीह में मेरा कुछ भी या आशीर्वाद या कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। Amen. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? If I am in certain needs, अगर मैं किसी प्रकार की जरूरत में हूँ and I know God the Father has answered my needs in Jesus, और मैं जानता हूँ कि पिता परमेश्वर ने मेरी सारी प्रार्थनाओं का जवाब यीशु में दिया है, and it is not in my life, और मेरे जीवन में अभी तक वो बात नहीं but है, it is in Jesus, लेकिन यीशु में वो बात है, it's going to make no meaning to me. और मुझसे इसका कोई फायदा नहीं मुझे I'm मिलेगा। only going to be blessed when that blessing now manifests itself in my real physical life. और मैं तभी मुझसे वो मतलब होगा या कोई फायदा तभी होगा जब वो आशीर्वाद जो है जो यीशु में है मेरे जीवन में प्रकट होगा। Now that is what the Holy Spirit does. अब यही बात पवित्र आत्मा करता A है। lot of people don't know why you need to have a relationship with the Holy Spirit. बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि क्यों अपना रिश्ता जो है पवित्र आत्मा के साथ Many होना है। people think it is a Pentecostal thing. बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो पेंटिकॉस्टल वाली बात है। When you don't understand the work of the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के काम को समझते नहीं हो, you are missing out on a lot of things in your life. तो आपके जीवन में बहुत सारी बातों को आप चूक रहे The हो। Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा परमेश्वर है। Sometimes we treat the Holy Spirit different from God the Father and God the Son. कुछ समय में ऐसा होता कि पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह उससे जो हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को अलग उससे बर्ताव करते A हैं। lot of people love to talk about God the Father. बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर के बारे में बात करना बहुत पसंद करते They हैं। believe in Jesus the Son. वो यीशु जो पुत्र के तौर पर उस पर विश्वास करते But when हैं, you talk to them about the work of the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के काम के बारे में जब उन लोगों से आप बोलते हो somehow their frequency changes. और कैसे भी कर उनका जो बहाव है, जो बातें हैं, वो बदल जाती No, है। in our denomination we don't do this. अरे ऐसे नहीं, हमारी संस्थाओं में हम ऐसे नहीं No, करते। I have not been taught like नहीं this. नहीं, मुझे तो इस प्रकार से नहीं सिखाया Come गया। on, He is God. अरे देखो, वो तो परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. And He has one specific job assigned to Him. और एक ठहराया गया काम उसके लिए दिया गया है। What is that job? और वो काम क्या है? Every blessing that the Father speaks out, हर एक आशीर्वाद जो पिता परमेश्वर बोलता है, every blessing that becomes the body of Jesus, हर एक आशीर्वाद जो यीशु मसीह की देह बन गया the है, Holy Spirit has this one work पवित्र आत्मा को ये एक काम है, to activate those blessings in your life. उन आशीर्वादों को आपके जीवन में लागू कर देना। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. When you read the Word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, it's filled with promises. तो वायदों से भरा हुआ है। We like to read promises. हम वायदों को पढ़ना पसंद करते We हैं underline them. और हम उसे रेखांकित करते We हैं, color them. हम उसे रंग बिरंगा कर We देते put हैं dates beside them. और
life through the work of the Holy Spirit. और वो केवल पवित्र आत्मा के काम के द्वारा ही आपके जीवन में आता है। Without the work of the Holy Spirit, और बगैर पवित्र आत्मा के कार्य के Christian life is a blessingless and fruitless life. और मसीह जीवन जो है फल रहित और आशीर्वाद रहित है। I can have all the blessings in one book in my hand, और सारे आशीर्वाद एक किताब में मेरे हाथ में ऐसा हो सकता है कि रहे, but not even one will be real in my real life. लेकिन उसमें से एक भी मेरे जीवन में वास्तविकता से नहीं होगा। Because the work of the Holy Spirit is not और present. क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य मेरे जीवन में जो है कार्य में So नहीं the लाया। Holy Spirit is a very important person in helping us inherit our blessings. और इसलिए पवित्र आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा जन है हमारे जीवन में उस मिरास को, उस आशीर्वाद को प्राप्त So there कराने are a में। few things that I want to just touch upon about the Holy Spirit today. कुछ ऐसी बातें जो आज पवित्र आत्मा के बारे में मैं बताना चाहूंगा। Reading verse 3 again. और तीसरे वचन को हम दोबारा पढ़ें। That's the theme of our sermons. और यही हमारे प्रचार का शीर्षक है। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। It talks about God the Father. पिता परमेश्वर के बारे में बताया It गया talks है। about the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया who है। has blessed us with every spiritual blessing. और जिसने हमें सारे आत्मिक आशीर्वादों से आशीर्वादित किया है। Spiritual blessing. आत्मिक आशीर्वाद। What is the meaning of spiritual blessing? आत्मिक आशीषों का मतलब क्या It है? means blessing that is in the spiritual form. यानी ऐसे आशीर्वाद जो आत्मिक क्षेत्र में या आत्मिक स्वरूप में है। Come on, you need to understand the word clearly. देखिए इस शब्द को बहुत ही सफाई से आपको समझना होगा। When people say spiritual blessing, जब लोग आत्मिक आशीर्वाद कहते हैं, they somehow disconnect the real life from the spiritual life. और कैसे भी करके अपने वास्तविक जीवन को आत्मिक जीवन से अलग कर देते God हैं। blesses only our spiritual life. परमेश्वर केवल हमारे आत्मिक जीवन को आशीर्वाद करता है। He'll bless my prayer. अरे वो मेरी प्रार्थना को यानी He'll आशीर्वाद fill me करेगा। with the Holy वो Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर देगा। I will speak in tongues. मैं अन्य भाषा में बोलूंगा। That is spiritual life. ये आत्मिक जीवन है। At the end, I will go to heaven. और अंत में मैं स्वर्ग जाऊंगा। That is spiritual life. ये आत्मिक जीवन है। And God only blesses us there. और परमेश्वर केवल वही उसी क्षेत्र में हमें आशीर्वादित करता Physical है। life is different, brother. नहीं भाई देखो, भौतिक जीवन तो बिल्कुल अलग है। God does not do anything here. परमेश्वर यहाँ पर भौतिक जीवन में कुछ नहीं करता। This is not what the word says. लेकिन देखिए वचन इस प्रकार से नहीं It बतलाता। says who has blessed us with every spiritual blessing. वचन बतलाता है कि सारे आत्मिक आशीषों ने, आशीषों को जिसने आशीर्वादित किया है। Every blessing has the first form, that is a spiritual form. हर एक आशीर्वाद को एक पहला आकार है जिसे आत्मिक आकार, आत्मिक स्वरूप कहते हैं। God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God lives in the spirit realm. परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में रहता So है। even the blessings that He gives और जो आशीर्वाद वो देता है वो भी also first exist in the spirit realm. सबसे पहले आत्मिक क्षेत्र में उस आशीर्वाद का अस्तित्व होता है। Hallelujah. हालेलुया। If you work in America, अगर आप अमेरिका में काम करते you हो are going to earn in American dollars. तो अमेरिकन डॉलर्स में आपकी कमाई होगी। Hallelujah. हालेलुया। And then you come back to India और उसके बाद आप भारत लौट कर आते हो and you take a rickshaw from the airport और आप एयरपोर्ट से रिक्शा लेते हो and he says, okay, 200 rupees. और वो कहता है ठीक है 200 रुपए। Then you take about $4 from your pocket. तो आपके बटुए से आप $4 निकालते हो, $4 Some 4 coins. और 4 कॉइन निकालते And you हो। give that to that rickshaw 4 driver. सिक्के निकाल कर आप वो रिक्शा ड्राइवर को देते Do you हो। think he's going to be happy taking that? क्या आपको लगता है कि वो देखकर वो बहुत ही खुश होगा? He'll say, इसका लेके मैं क्या करूं? वो बोलेगा इससे इसके साथ मैं क्या करूं? Are you getting what I'm मैं saying? जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है। The same is with our blessings. और यही बात हमारे आशीर्वाद के Our प्रति है। blessings originate in the spirit realm. हमारा आशीर्वाद आत्मिक क्षेत्र में जो है बनता है या अस्तित्व में आता है। Hallelujah. हालेलुया। To be a blessing in our lives, हमारे जीवन में आशीर्वादित होने के it's लिए going to be important for us to change the currency. हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उस करेंसी, उस पैसे को हम बदल दें। That spiritual blessing has a need to become a physical and a worldly blessing. वो आत्मिक जो आशीर्वाद है वो सांसारिक आशीर्वाद और भौतिक आशीर्वाद में बदलना यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात That है। is what the Holy Spirit does. और यही बात पवित्र आत्मा करता है। Now let's move to verse 13. आइए 13वें वचन में हम आए It says like this. और इस प्रकार से लिखा है, In Him you also trusted. In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. और तुम उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, तुमने इस पर विश्वास किया। इस प्रकार से लिखा है।
It talks about the seal of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के मोहर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, छाप के बारे में लिखा हुआ I want to just go slowly on verse 13 and 14. है। और 13वां वचन और 14वां वचन पर बहुत ही धीमे से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। First it talks, in him you also trusted. It's talking about Jesus Christ. और यीशु के बारे में बताया कि उस पर भी तुमने पहले से विश्वास किया। Now that's found in verse 12. अब 12वें वचन में ये पाया जाता You है। first trusted in Christ. और पहले ही से ही तुमने मसीह पर आशा यानी विश्वास रखा। Verse 13. 13वां वचन, In him you first trusted. और उसी में तुमने पहले ही उस पर वचन और यानी विश्वास किया। After you heard the word of truth, और जब तुमने सत्य का वचन सुना, the gospel of your salvation, आपके उद्धार का सुसमाचार है, whom also having believed, और जिसमें तुमने विश्वास किया, you were sealed with the Holy Spirit of promise. और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। First comes trusting in Christ. और सबसे पहला मसीह पर भरोसा रखना ये बात आती That's है। what the word of God says. यही बात प्रभु का वचन बतलाता You है। first trusted in Christ. सबसे पहले आपने मसीह के वचनों पर विश्वास किया, And after you trusted in Christ, और मसीह पर आपने विश्वास करने के बाद, then you were sealed with the Holy Spirit of promise. उसके बाद जो है पवित्र आत्मा के प्रतिज्ञा के द्वारा आप पर मोहर लगी। Verse 14 is important here. 14वां वचन यहाँ पर बहुत ही It महत्वपूर्ण talks है। about the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के काम के बारे में बताया गया है। Who is the guarantee of our inheritance? वह हमारे मोल लिए जाने और वह हमारे मिरास का बयाना है। Who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession? और वह उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है। The Holy Spirit is the guarantee of our inheritance until the Lord Jesus Christ comes. जब तक यीशु न आए तब तक जो है पवित्र आत्मा हमारे मिरास का बयाना है। Now I'll give you an example. और मैं आपको एक उदाहरण देता Now हूँ। you want to go on a holiday. और आप छुट्टियों पर जाना चाहते हो, So you want to go to Maldives. और इसलिए आप मालदीव में जाना चाहते Very हो, beautiful place. बहुत ही सुंदर जगह। So you go to your travel agent और इसलिए आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते and हो, he looks at your trip और आपके ट्रिप की और वो देखता है, and you like the plan that he's made. और जो प्लान उसने बनाया वो बहुत ही आप पसंद करते हो। And then he tells you, और उसके बाद वो आपसे कहता है, okay, now it totally costs 3 lakh rupees. ये कुल मिलाकर अब 3 लाख रुपए की जरूरत है। And suddenly your heart starts beating fast. और अचानक आपका दिल की धड़कन बढ़ जाती है, Because you don't have 3 lakhs right now. क्योंकि इस समय आपके पास 3 लाख रुपए नहीं है, You only have 50,000. केवल 50,000 आपके पास है। So this is what you do. और अब ये ऐसा आप करते हो, He says, okay, you take this 50,000. आप कहते हो देखो ये 50,000 आप ले लो, This 50,000 is a guarantee और ये 50,000 वो गारंटी वो बयाना that है I'm going to come back and I'm going to pay the remaining and buy the plan from you. कि मैं लौटाकर जरूर आने वाला हूं, और ये प्लान में तुमसे बाकी के सारे पैसे देकर इस प्लान को जरूर लेने वाला See, हूं। this is what God has done with you and me. देखिए यही बात परमेश्वर ने आपसे मुझसे की है। Jesus died on the cross. यीशु क्रूस पर मरा, He redeemed us. उसने हमें छुड़ाया, Through Jesus, we become the children of Abraham. यीशु के द्वारा हम अब्राहम के संतान बने। But people like you and me, we ask God this question. लेकिन आपके जैसे मेरे जैसे लोग हम परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं, Lord, Abraham is different. फिर परमेश्वर अब्राहम तो अलग है, Oh, he was your favorite. वो तो आपका बहुत ही पसंदीदा You था, blessed him. आपने उसे आशीर्वादित किया। But what is the guarantee that you will bless me? लेकिन गारंटी क्या है, हम ही क्या है कि आप मुझे आशीर्वादित करोगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You come to church faithfully for so many years. आप कई सालों से विश्वास योग्य रहते हो, कलीसिया में बराबर आते हो। I want to ask you this question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, What is your guarantee that God will bless you? और आपकी गारंटी क्या है, हम ही क्या है कि परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा। Only hope, brother. केवल आशा है भाई। Hope is not guarantee. देखिए आशा रहना ये कोई गारंटी है God हमें has नहीं, given us a guarantee. परमेश्वर ने हमें एक बयाना दिया है। Hallelujah. हालेलुया। What does the Bible say? बाइबल क्या बतलाती है? Until Jesus comes. जब तक यीशु ना आए, Until heaven comes. जब तक स्वर्ग ना आ जाए, Until you enter your eternal inheritance. जब तक आपके सार्वकालिक उस मिरास में आप सहभागी ना हो जाए, Until you have been blessed with every blessing that God has promised you. जब तक परमेश्वर ने जो हर एक आशीर्वाद आपको दिया, जब तक उन सारे आशीर्वादों से आप भरपूर न हो जाए, God has given us His Spirit as a guarantee. परमेश्वर ने अपनी आत्मा को एक गारंटी के तौर पर, बयाने के तौर पर हमें दिया। He said, okay, you take my spirit. और वो कहता है ठीक है मेरी आत्मा तुम ले लो। You know what is the spirit? आप जानते हो आत्मा क्या है? You know, when a man is alive, you look at him and you call him Rajesh and you call him Joel. और आप जब व्यक्ति जिंदा रहता है आप उसे राजेश और जोएल कहते But हैं। the moment that person is dead, लेकिन जिस क्षण वो व्यक्ति मर जाता है, you know what they start calling you? आप जानते हो क्या बोलने लगते हैं आपको? Body. शव। Pastor, when is the body coming? पास्टर शव कभी आ रहा है? Hallelujah. Where is the name gone? अब वो नाम कहाँ गया? Because that person is not there. क्योंकि वो व्यक्ति अब वहाँ नहीं रहा। The spirit has departed. आत्मा उससे दूर हो चुका है। Why is that spirit so important? वो आत्मा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? That spirit is a
the life of that man. और वो आत्मा ही उस व्यक्ति का जीवन है। When that spirit goes, और जब वो आत्मा निकल जाती है, that man is no longer there. वो व्यक्ति तो बिल्कुल वहां पर रहता ही Where नहीं, the spirit is, there the man is. क्योंकि जहां पर आत्मा है वहीं पर व्यक्ति है। And we say, okay, Joel is now gone to heaven. और हम बोलते हैं ठीक है जोएल आप स्वर्ग That जाए, means the spirit has gone to heaven. यानी आत्मा जो है स्वर्ग गई And है, where the spirit is, और जहां पर आत्मा है there the person is. और वहीं पर वो व्यक्ति है। Listen very carefully. ये बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए, God has opened his mouth and blessed you. परमेश्वर अपने मुंह खोलकर आपको आशीर्वादित किया And है, you are standing there and say, what is the guarantee? और आप खड़े होकर पूछते हो, अरे इसकी गारंटी क्या, You हमें know क्या what है? God did? परमेश्वर क्या करता है पता है? He took his spirit. वो अपनी आत्मा लेता है, Hallelujah. His spirit is his life. और उसकी आत्मा यानी उसका जीवन, If I take my spirit and give you, अगर मैं अपनी आत्मा लेकर आपको दे दूं, I will drop dead here. तो मैं यहीं पर मरा पड़ा रह जाऊंगा। And the next moment you will say, oh, pastor's body is like that. अगले क्षण आप बोलेंगे पास्टर का शव वहां पर पड़ा, Because the spirit has gone. क्योंकि आत्मा निकल गई है, The life has gone. जीवन चले गया, The person is gone. व्यक्ति चले गया। When you and I stood and asked God, God, what guarantee that my life will be a blessing? जब आप और मैं खड़े होकर परमेश्वर से पूछते हो, हे प्रभु क्या गारंटी, क्या हामी है कि मेरा जीवन What आशीर्वादित is the होगा? guarantee that my children will be blessed? कैसी कौन सी ऐसी हामी है कि मेरे बच्चे जरूर आशीर्वादित होंगे? You know what God the Father आप did? जानते हो पिता परमेश्वर ने क्या किया? He said, you want guarantee? कहता है तुम्हें हामी चाहिए? He did not say, okay, take 5 angels with you and उसने go. ऐसा नहीं कहा कि 5 स्वर्गदूत लेकर अपने साथ चले जाओ, Keep them with you till the time every promise is fulfilled. और हर एक वादा जब तक पूरा नहीं होता ये 5 स्वर्गदूतों को अपने साथ रखो And ऐसा, after that you send them. और उसके बाद वापस इन 5 स्वर्गदूतों को भेज दो। Hallelujah. He Hallelujah. didn't do that. ऐसा प्रभु ने नहीं किया। Now what did he do? आप जानते हो उसने He क्या said, किया? I will give you my spirit. उसने कहा मेरी आत्मा को मैं तुम्हें The दूंगा। very life of God. यानी परमेश्वर का जीवन ही, The very existence of God. परमेश्वर का अस्तित्व The very reality of God. और परमेश्वर की वास्तविकता को He gives to you as a guarantee that he will fulfill every promise that he has promised you. और वो इस प्रकार से आपको हर एक वायदे जो आपको दिए हैं उस वायदे को वो पूरा करेगा। इसके तौर पर उसने हामी के तौर पर, उसने बयाने के तौर पर अपनी आत्मा को आपको When दिया। we God's children, जब हम परमेश्वर की संतान, having the guarantee of God's own life, वो परमेश्वर के जीवन की ही गारंटी हमें बयाना हमें मिला है। when now we doubt the capacity of God, और ऐसा करने के बाद जब परमेश्वर की काबिलियत पर हम जब शक करते हैं, you know the devil sits and he laughs at us. आप जानते हो शैतान बैठकर हमारी ओर देखकर वो हंसता रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? Hallelujah. हालेलुया। Because the devil knows the truth. क्योंकि शैतान इस सत्य को जानता Do है। you know why the devil revolted? क्यों आप जानते हो शैतान ने क्यों इस प्रकार से विद्रोह की बात की? Because he saw something. क्योंकि उसने कुछ बात को देखा। Lucifer saw something. लूसीफर ने किसी बात को देखा, He heard something. उसने कुछ सी बात को सुना That God is going to make a generation that is going to be more closer to God than me. कि परमेश्वर ऐसी पीढ़ियों को बनाने वाला है, ऐसी पीढ़ी जो मुझसे भी ज्यादा परमेश्वर के निकट रहने वाली है। Lucifer was an angel that stood in the presence of God. लूसीफर ऐसा दूत था जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहा He था। was the one closest to God. वो ऐसा था कि सबसे निकट वही रहता None था, of the other angels could come as close to God as much as Lucifer could come. और जितना लूसीफर प्रभु के निकट आता था उतना कोई भी स्वर्गदूत प्रभु के निकट इतना नहीं आता He था। saw something in the heart of God. परमेश्वर के हृदय में किसी बात को उसने देखा, He saw your face in the heart of God. उसने परमेश्वर के हृदय में आपके चेहरे को देखा, What did he see in that face? और उस चेहरे में उसने क्या देखा? That in the days to come, आने वाले दिनों में God is going to make a guarantee to this person. परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ एक बयाना इसको देने वाला The है, guarantee is not with some gold. और वो गारंटी वो बयाना कोई सोना देकर नहीं It's होगा, not with some agreement. कोई करारनामा करते हुए नहीं It's होगा, not by giving a few angels. और कुछ स्वर्गदूतों को देने के द्वारा नहीं होने वाला, The guarantee is going to be by giving himself to that person. और वो गारंटी वो बयाना जो है खुद अपने आप को उस व्यक्ति को देने के द्वारा होने What वाला है। happens when God gives himself to you? और क्या होगा जब परमेश्वर अपने आप को ही आपके लिए दे देता है? Come on, you become God. देखिए आप खुद परमेश्वर बन जाते हो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting what I'm saying, church? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको कलीसिया? God is seated on his throne. परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है, Lucifer is standing there. लूसीफर वहां पर खड़ा है, In the heart of God, he sees this plan. परमेश्वर के हृदय में इस योजना को वो देखता है, And in that plan, he now sees. और उस योजना में अब इस बात को वो देखता And है God gives himself to us, his spirit to us. कि परमेश्वर ने अपने आप को, अपनी आत्मा को हमें दिया। He sees us sitting on the throne. तो अब हमें उस सिंहासन पर विराजमान बैठे
got angry. और वहां पर वो क्रोधित हुआ। That throne should belong to me. अरे वो सिंहासन तो मेरा होना I चाहिए। have been serving you for so long. मैं तो इतने लाखों सालों से मैं तेरी सेवा कर रहा I'm हूँ। standing before you. मैं तो तेरे सामने प्रभु खड़ा रहता How हूँ। can you give this love to an ordinary man? कैसे इस प्रेम को, इतने प्रेम को आप एक सर्वसाधारण How मनुष्य can को you दे give सकते your spirit to that man? हैं? आप कैसे क्या अपनी आत्मा को उस मनुष्य को दे सकते How हैं? can you lift up man to the position of your throne? कैसे आप अपनी उस सिंहासन के स्तर पर एक मनुष्य को आप उठा सकते हैं? He revolted against God. और उसने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया। And now today, और आज अभी when he sees you and me जब वो आपकी और मेरी ओर देखता है, worrying about our problem, हमारी समस्याओं के बारे में चिंता करते हुए all tensed और up, सारे तनाव से भरा हुआ writing prayer requests to every possible pastor in the world, और संसार में जितना हो सके उतने संभवतः सारे पासवान को अपनी प्रार्थना विनतियों को लिखते हुए crying in the corner, और एक कोने में जाकर रोता हुआ feeling defeated, और बहुत ही पराजित ऐसे महसूस करते हैं feeling broken. और बहुत ही हम टूट चुके हैं ऐसे You know महसूस what करते the हैं। devil does? आप जानते हो शैतान ऐसा देखकर He क्या करता है? stands and he laughs. और वो खड़ा होकर हंसता रहता है। Hallelujah. हालेलुया। What is he laughing for? और किस बात के लिए वो हंस रहा है? He is laughing because he is seeing something that you and I have not been able to see till now. वो इसलिए Not been able to see till now. और इसलिए वो हंसता है कि इस बात को देख कर के इन सारी बातों को हमने अभी भी वो बात नहीं पाई है, सारी He बातें नहीं। sees that God has given us his own spirit. और वो देखता है कि परमेश्वर ने उसकी खुद की आत्मा हमें दी है। But we are crying as though we are all alone in the world. लेकिन हम ऐसे रो रहे हैं मानो इस संसार में केवल हम अकेले ही व्यक्ति बच He गए हैं। sees that God's spirit is in our family. वो देखता है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे परिवार में है। But he sees us all weeping as a whole family saying, what is going to happen to लेकिन us? पूरा परिवार मिलकर हम रोते हुए वो देखता है कि अरे कल हमारा क्या होगा। You know what the Holy Spirit does? आप जानते हो पवित्र आत्मा क्या करता He है? activates every blessing that God has promised to you. परमेश्वर ने हर एक वायदा जो आपको दिया है, सारे वायदे को लागू करता है, काम में ले The आता है। Holy Spirit is the Spirit of God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। God is incomplete without His Spirit. परमेश्वर अपनी आत्मा के बगैर वो अधूरा है। When my spirit leaves me, I'll be just called a dead body. जब मेरी आत्मा मुझसे निकल जाएगी तो मैं केवल एक शव बन God has जाऊंगा। gone to that extent and He has given His Spirit to you and me. परमेश्वर इतने हद तक वो गया कि उसने अपनी आत्मा आपको और मुझको दे He दी। makes our heart His dwelling place. उसने हमारे हृदय को अपना निवास स्थान बना लिया। Why has He come here? क्यों वो यहाँ पर आया The है? Bible says बाइबल बतलाती है to be a guarantee for you. और आपके लिए एक बयाना होने के He लिए। says, I'm going to give you a guarantee वो कहता है कि मैं तुम्हें एक हामी, एक गारंटी, एक बयाना देता that I हूँ will bless you, कि मैं तुम्हें आशीर्वादित that you करूंगा, will be successful, कि तुम सफलता होगे, that whatever you do will prosper, जो भी कुछ तुम करोगे वो सफल होगा, that your children will be prosperous, तुम्हारे बच्चे सफल पूर्वक आगे that your बढ़ेंगे, children will be blessed, तुम्हारे बच्चे आशीर्वादित होंगे, your family will be blessed. तुम्हारा परिवार आशीर्वादित होगा I am going to become that guarantee. और मैं ही खुद वो बयाना बनने वाला The हूँ। Bible says बाइबल बतलाती है God, His Spirit becomes a guarantee for और us. परमेश्वर खुद की आत्मा, उसका आत्मा खुद बयाना The बना। Bible says He has sealed us with His Spirit बाइबल बतलाती है कि अपनी आत्मा के द्वारा हम पर मोहर लगा दी है, as a guarantee of our inheritance हमारी मिरास का बयाने के तौर पर हमको वो छाप हम पर दी है। until the day every promise is fulfilled in our life. और जब तक हमारे जीवन में हर एक वायदा पूरा नहीं हो जाता तब तक। Hallelujah. 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 Come on, church. I'm telling you, we are carrying the Spirit of God in our bodies. मैं बताऊं कलीसिया कि हम अपने शरीर में, देह में परमेश्वर की आत्मा को लिए चलते The हैं। Holy Spirit is not just about clapping your hands and speaking in some weird language and jumping and rolling on the floor. और पवित्र आत्मा केवल ये नहीं कि ताली बजाओ और अजीब भाषा में कुछ आप बोलो और ऐसे कूदो और जमीन पर लोटपोट हो जाओ। That could be one manifestation. ये तो एक प्रकार का प्रकट होना है, But His purpose in your life लेकिन उसका उद्देश्य आपके जीवन में is to guarantee the fulfillment of every blessing. हर एक आशीर्वाद की वो मिरास का बयाना है। When you have a relationship with the Holy Spirit, जब आपका पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता होता है you are building a relationship with the one who can change your life. तो ऐसे जन के साथ आप रिश्ता रख रहे हो जो आपके जीवन को पूर्णता से बदल दे। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you have a fellowship with the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा के साथ आपकी संगति रहती है you are having fellowship with the Spirit of God. तो आप परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति रख रहे हो। Hallelujah. Hallelujah. Are you here with me this morning? क्या इस सुबह के समय आप मेरे साथ Are हो? you here with me this morning? क्या इस सुबह के समय आप मेरे साथ In the days before the cross, क्रूस
के पहले के दिनों में people could not approach the throne of God. लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने नहीं आ पाते The थे mercy seat was kept in the most holy place. और जो है अनुग्रह का स्थान जो है अति पवित्र स्थान में रखा गया था People only heard about God, they never saw God. परमेश्वर के बारे में लोगों ने सुना कभी भी प्रभु को देखा They नहीं could not say their prayers directly to God. वे ऐसे नहीं कहते थे कि सीधे परमेश्वर की ओर उनकी प्रार्थना They है could not go and worship God. वे जाकर परमेश्वर की उपासना नहीं कर पाते But थे because of Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह के वजह से because of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के वजह से we are no longer at the foot of the cross. अब हम उस क्रूस के तले नहीं हैं We are on the throne of God. हम परमेश्वर के सिंहासन पर हैं Hallelujah. Hallelujah. We are no longer on the up there in the throne room of God. और हम परमेश्वर के सिंहासन के उस क्षेत्र में That हैं is what the word of God says. और यही बात प्रभु का वचन बतलाता है Come before him with confidence. और पूरी हामी के साथ आत्मविश्वास के साथ प्रभु के सामने आओ The new covenant believer is supposed to come before God like this. नई वाचा का जो विश्वासी है परमेश्वर के सामने इस प्रकार से आना चाहिए Supposed to come before him with confidence. और पूरे हियाव से पूरे हिम्मत से प्रभु के सामने आना है Because you are not standing at the outer court. क्योंकि आप बाहरी आंगन में खड़े नहीं हो You are in the throne room of God. आप परमेश्वर के उस सिंहासन के उस क्षेत्र में आ You might गए have seen these movies of those kings, you know. और आप उन राजाओं के पिक्चर को आपने देखा So होगा the king comes and sits on his throne. वो राजा आकर अपने सिंहासन पर बैठता And you है have all those ministers standing before उसके him. बाद सारे उसके कर्मचारी खड़े होते हैं All those well-dressed people. और बहुत ही अच्छे से वस्त्र पहने हुए And लोग little far away, और थोड़ी सी दूरी पर you have those ordinary people wearing, dhoti and kurta, और सर्वसाधारण लोग जो धोती कुर्ता पहनते हैं ऐसे लोग खड़े होते हैं folding their hands, और अपने हाथों को ऐसे बांधते हुए bending little, और थोड़ा सा झुके हुए not even lifting up their eyes and seeing the king. और अपनी आंखों को भी उठाकर राजा की ओर देखते भी नहीं हैं This is what we were before the cross. और क्रूस के पहले ऐसे ही हम थे Hallelujah. Hallelujah. Under the law of God. और परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन That में is how we were before the cross. और क्रूस के पहले इसी प्रकार से हमारी स्थिति थी We had no salvation. और हमारे पास उद्धार नहीं There था was no glory in us. और हमारे अंदर कोई महिमा नहीं There थी was nothing glorious about और us. हमारे विषय में कोई महिमा में बात नहीं थी We were just bowing down before him. हम उसके सामने केवल झुके हुए But थे when Jesus died on the cross, लेकिन जब यीशु क्रूस पर मरा God the Father on the throne, पिता परमेश्वर अपने सिंहासन पर रहते he हुए looked at you standing right behind there और उसने वहां पर आपको वहां पर खड़े हुए देखा with dirty clothes, और गंदे वस्त्रों के साथ holding hands, और हाथों को ऐसे मोड़े हुए bowing head down. और सरों को ऐसे झुकाते God हुए the Father looked at you पिता परमेश्वर ने आपकी ओर and he देखा said, "Hey you, और उसने कहा है तुम come here." यहाँ पर आओ Hallelujah. Are you with me this morning? क्या सुबह का समय आप मेरे साथ हो Are you with me this morning? मेरे साथ क्या है सुबह का समय He आप called us forward. और उसने हमें आगे बुलाया Because of my son Jesus, और मेरे पुत्र यीशु के वजह से I choose to bless you. मैं तुझे आशीर्वाद देना चुनता Our हूँ head is still bowed और down. तभी भी हमारा सर झुका हुआ We say, है "Okay, Lord." हम कहते हैं ठीक है प्रभु He says, "Then lift up your head." उसका वो कहता फिर अपने सर को उठाओ He says, "No, Lord, how can I lift वो up my कहता head? नहीं प्रभु मैं अपने सर को कैसे उठाऊं You are God and I am man. तू तो परमेश्वर और मैं तो केवल I मनुष्य cannot मात्र lift हूं up my head." मैं अपने सर को नहीं उठा God सकता says, "No, I bless you in everything. परमेश्वर कहता नहीं मैं सारी बातों में तुझे आशीर्वादित I करता bless हूं you in everything. मैं सारी बातों में तुझे आशीर्वाद Lift करता up हूं and stand like a man." और तू अपने सर को उठा और मनुष्य पुरुष के जैसे खड़ा हो When God created Adam, He did not create Adam bent down. और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो झुका हुआ ऐसा नहीं बनाया Adam आदम was को created in the image and likeness of God. आदम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था Head lifted up, और सर को पूरी रीति से उठाया हुआ shoulders broad, और उसके कांधे पूरे चौड़े फैले हुए थे face shining like the glory of और God. परमेश्वर की महिमा के जैसे उसका चेहरा चमकदार That is था how Adam was. और इसी प्रकार से आदम था But now because of sin, लेकिन अब पाप के वजह से he's all bent and bowed down. और ये सब जो है झुके और मुड़े हुए नीचे Jesus takes the sin away. यीशु ने पाप को निकाल दिया God the Father is blessing. पिता परमेश्वर आशीर्वाद दे रहा है But still I don't want to lift up my और फिर head. भी मैं अपने सर को ऊंचा उठाना नहीं चाहता Then God says, "Okay, you don't believe me. तब परमेश्वर कहता अरे तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते So हो let me do something for you. ठीक है अभी भी तेरे लिए मैं कुछ करूंगा Come here." यहाँ पर आओ He takes his spirit and puts it inside me. उसने अपनी आत्मा को लेकर मेरे अंदर डाल दिया Hallelujah. हालेलुया Are you with me? क्या मेरे साथ हो? समझ रहे हो Hallelujah. हालेलुया Praise God. प्रेज द लॉर्ड I stand all bent down. और मैं पूर्णता से झुके हुए खड़ा था Now the Spirit of God comes in. लेकिन अब पवित्र आत्मा मुझ में आता है And again, my chest becomes और broad. दोबारा मेरा सीना बहुत ही तन जाता My है head is lifted high. और सर जो है सर वो ऊंचा उठता है The same glory that Adam had, the
image and likeness of God is restored in my life. और वही महिमा, वही परमेश्वर का आदर, वही परमेश्वर की प्रकाश जो है मेरे जीवन में दोबारा जोड़ा जाता Bible है। says we who were far away have been drawn near. बाइबल बतलाते कि हम पहले बहुत ही दूर थे, अब उसके निकट आ गए। Hallelujah. हालेलुया। And every blessing is sealed in our life with the Holy Spirit. और हर एक आशीर्वाद हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा दिखाई देते हैं। I'm going to continue talking about the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा के बारे में लगातार इसी विषय में आगे बढ़ूंगा। And very specifically to how the Holy Spirit is in our life to help us achieve what God has wanted us to achieve. और ठहरा गए तौर पर विशेष बात में इस बात पर गौर करूंगा कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने जो हमारे जीवन में आशीर्वाद रखे उन आशीर्वादों को कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्यरत करता But है। if you have to be blessed with this sermon, लेकिन इस संदेश के द्वारा अगर आप आशीर्वादित होना है there is something that you need to do. तो कुछ बात है जो आपको करनी होगी। You have to start getting sensitive to the Holy Spirit inside of you. आपके अंदर पवित्र आत्मा जो है उसके प्रति आपको बहुत ही संवेदनशील होना The होगा। Holy Spirit is a counselor. पवित्र आत्मा सलाहकार है, He is a teacher. वो शिक्षक है, He does not force himself on his people. वो जो है अपने लोगों पर दबाव नहीं डालता, जबरदस्ती नहीं You करता। need to be sensitive to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के प्रति आपको बहुत ही संवेदनशील रहना You need होगा to be sensitive to him. और उसके प्रति आपको बहुत ही संवेदनशील रहना Start होगा। listening to his voice. उसकी आवाज को सुनने लगे Start listening to his instruction. और उसके निर्देश को आप समझने When लगे। you read the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते he हो speaks to you. वो आपसे बात करता When है। you're traveling, जब आप यात्रा कर रहे he होते speaks to हो you. वो आपसे बात करता When है। you're cooking, जब आप भोजन he पकाते speaks to हो you. वो आपसे बात करता है। Every moment of your life, he desires to speak to you. आपके जीवन के हर एक क्षण में आपसे बात करना वो पसंद करता है। That's one nature of the Holy Spirit that I know. पवित्र आत्मा का एक गुण है जो मैं जानता हूँ That's only one thing that I know about him. और पवित्र आत्मा के बारे में केवल एक बात मैं जानता हूँ That he is very talkative. कि वो बहुत ही बोलने वाला, बात करने वाला है। Hallelujah. Praise God. He's always talking. वो हमेशा बोलता रहता है। Hallelujah. He हालेलुया। has something to say about everything we do. और हम हर एक काम जो करता है कुछ न कुछ बात जरूर, यानी बहुत सारी बातें उसके पास होती He has है some opinion about everything that we do. और हर एक बात जो हम करते हैं उसके बारे में राय उसके पास होती है। You're cooking, he has something to say और about it. अगर आप भोजन पका रहे तो उसके विषय में कुछ बात है आपको बताने के You're लिए। washing, he has something to say. अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो उसके विषय में कुछ बात है जो आपको बतानी You're है। walking, he has something to आप say. चल रहे हैं तो उस विषय में बात कर बताने के लिए कुछ बात उसके पास You're है। traveling, he has something to say. आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको बताने के लिए उसके पास कुछ है। You're sleeping, even there he does not be quiet. आप सो रहे हो तो वहां पर वो चुप नहीं रहता, Even there he has something to say. वहीं पर भी कुछ बोलने के लिए, बताने के लिए उसके पास है। Hallelujah. He's हालेलुया। always talking. वो हर समय बात करता रहता है Because he knows he's on a mission. क्योंकि वो जानता है कि एक दर्शन, एक मिशन पर वो You है। know, we have this lady who comes to help us in our house. देखिए एक महिला है जो हमारे घर पर मदद के लिए आती She है comes to, clean the vessels and do some cooking. और वो बर्तनों को धोने के लिए और कुछ भोजन पकाने के लिए आती She है comes for like 1 hour. और वो तकरीबन 1 घंटे के लिए आती है In 1 hour she's busy. और वो पूरे 1 घंटे बहुत ही व्यस्त रहती है। You try to tell her, okay, you sit down for 2 minutes and drink a cup of tea. और आप उन्हें बोलने का प्रयत्न करो कि देखो 2 मिनट आप बैठ जाओ और जरा चाय पी लो She says, no, 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 I have to finish this. और वो बोले कि अरे नहीं नहीं मुझे काम पूरा I have to करना, get this done. मुझे सारा काम पूरा करना है। Because she knows she's on a mission. क्योंकि वो जानते हैं कि एक मिशन पर वो है There's something that she has to do for this family today. और आज कुछ ऐसी बात है जो इस परिवार के लिए उसे करना है। You know why the Holy Spirit is always talking? आप जानते हो पवित्र आत्मा क्यों हमेशा बोलता रहता He है? knows he's on a mission. वो जानता है कि वो मिशन पर है। Before Jesus comes, यीशु आने से पहले, before my time is done, मेरा समय पूरा होने से there पहले are many blessings that he has to bless बहुत me. सारे आशीर्वाद हैं जिसके द्वारा मुझे इसे आशीर्वाद There are करना है। many things that he has to still complete in my life. बहुत सारी ऐसी बात है जो उसे मेरे जीवन में पूरी करनी There are है। still many blessings that he has to give me today. बहुत सारी ऐसी बात है जो आज वो मुझे देना है। There are still many doors that he wants to open for me today. बहुत सारी ऐसे द्वार हैं जो अभी भी आज मेरे जीवन में वो खोलता है। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting what I'm saying, church? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कलीसिया? Come on, are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit in your life is with a mission. पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में एक मिशन के साथ He है, has come with a purpose. वो एक उद्देश्य के साथ आया He है। has just not wandered into your life. वो ऐसे भटकते हुए आपके जीवन में नहीं He आया। has just not, lost his way into your life. वो बस ऐसे रास्ता भटक गया और आपके जीवन में आ गया, ऐसा नहीं He है। has come with a perfect plan. वो सिद्ध उद्देश्य के साथ He has आया। come with a guarantee. वो पूरी हामी और बयाने के तौर पर What आया। is the guarantee? बयाना क्या है? To fulfill every promise that God has made. हर एक वादा जो परमेश्वर ने किया है उसको पूरा करने के बयाने के तौर पर। Hallelujah. Hallelujah. How do we let him do it? हम कैसे उसे ऐसा करने देंगे? By becoming sensitive to his voice. उसकी आवाज के प्रति संवेदनशील होने के द्वारा। Okay, today I've got 24 hours. अरे आज मेरे पास 24 घंटे The हैं। Holy Spirit is busy. पवित्र आत्मा बहुत ही व्यस्त है। You need to be sensitive to listen to him. आप उसकी बातों को सुनने के लिए बहुत ही संवेदनशील Okay, होना। what are the things we're going to do today?
अरे कौन सी बात है जो आज हमें करनी है? I'm going to go to work today. मैं आज काम पर जाने वाला हूँ। In this workplace, what is it that you want to achieve today? और इस काम के स्थान पर कौन सी बात है आप चाहते हो मैं हासिल करूं? I'm going to travel for 1 hour. मैं 1 घंटे के लिए यात्रा करने In वाला this हूँ। 1 hour, what is your plan, Holy Spirit? इस 1 घंटे के दरमियान आपकी योजना क्या है? He's पवित्र always आत्मा? on a plan. वो हमेशा एक योजना के साथ He's रहता है। always on a plan. हमेशा एक योजना में वो रहता है। Because he has one purpose. क्योंकि एक ही उसका उद्देश्य है, To fulfill all of God's promises in your life. परमेश्वर के सारे वायदे आपके जीवन में पूरा So you करना। need to keep asking him all the time. और इसलिए हर बार आपको उसे पूछना चाहिए, Now what? अब क्या प्रभु? Next what? अगली बात क्या है? Now what? अब क्या करना? Next what? अगली बात क्या What करना? is it that's going to happen today? और कौन सी बात है जो आज होने वाली है? What about this month? और इस महीने के विषय में क्या? What about this year? और इस वर्ष के विषय में क्या? What about this thing? इस बात के बारे में What क्या? about that thing? उस बात के बारे में क्या? Concerning everything, the Holy Spirit has a plan. सारी बातों के बारे में पवित्र आत्मा के पास योजनाएं हैं। We become sensitive to that plan. जब उस प्लान की, जब उस योजना के प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं, I'm telling you, your life will be a life filled with testimonies. मैं आपको बताऊं कि आपका पूरा जीवन पूरी गवाहियों से भरा हुआ जीवन होगा, Non-stop testimony life. और न रुकते हुए लगातार की गवाही का A lot जीवन। of people nowadays, they have non-stop prayer life, praying for their needs. बहुत सारे लोग जो है न रुकते हुए जरूरतों के लिए प्रार्थनामय जीवन लगातार का रहता So they है, have non-stop needs. इसलिए लगातार की न रुकने वाली जरूरत भी होती है। But now that non-stop needs is going to change into non-stop blessings. लेकिन न रुकने वाली जो जरूरत है वो बदल कर न रुकने वाले आशीर्वाद में बदलने वाला है। It is for that purpose that the Holy Spirit has come. और इस उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा आया It is है, for that reason the Holy Spirit is और here. इस उद्देश्य के लिए कारण के लिए पवित्र आत्मा आया Open है। that door behind. Children, open that door. It's for that reason that the Holy Spirit has come. और इस वजह के लिए, इस कारण के लिए पवित्र आत्मा आया And है, that is what He's going to do in our lives. और यही बात परमेश्वर हमारे जीवन में करने He's वाला going है। to bless us with non-stop blessings. वो लगातार न रुकने वाले आशीर्वाद से हमें आशीर्वादित करने वाला When है, we become sensitive to His और voice. बेहतर है कि हम उसकी आवाज के प्रति संवेदनशील हो जाएं। He is a counselor. वो सलाहकार है। When we are listening to His voice, जब उसकी आवाज को हम सुनते हैं, I know in India we don't use GPS that much. मैं जानता हूँ कि भारत में जीपीएस इतना उपयोग में नहीं But लाता है, abroad, every car has the GPS. लेकिन अब्रॉड में हर एक कार में जीपीएस होता And है, wherever they want to go, they have all those addresses that they just type in there. और जहाँ कहीं उन्हें जाना होता है, बस एड्रेस वहाँ पर टाइप कर देते And हैं, the GPS starts speaking. और वो जीपीएस बोलने लगता है, 200 meters, go straight. 200 मीटर तक सीधे जाओ, Just going straight. और वो सीधे जाता रहता है। Take the next right turn. और अगली दाहिने मुड़ो, Take the next और वो अगले दाहिने one. मुड़ो, Continue straight ahead for 500 meters. और लगातार 500 मीटर तक लगातार सीधे जाते रहो, Take the second exit in the roundabout. और जो है वो घूम कर जो है दूसरा बाहर निकलने के रास्ते पर आ जाओ। GPS, it directs your every step. जीपीएस जो है आपका हर एक कदम को वो चलाता है, अगुवाई करता है। Hallelujah. हालेलुया। That is kind of the role of the Holy Spirit in our life. इसी प्रकार का कार्य पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में है, It's very easy for me to just touch a finger and tell shut up and switch it off. और मेरे लिए बहुत ही आसान है बोलना कि अरे चुप हो जाओ और उसे बंद कर दूं। Hallelujah. हालेलुया। And then go Mumbai Darshan, searching for the White House. और उस एक घर को ढूंढते हुए पूरा मुंबई दर्शन ही में कर लूं। A lot of people in our lives, we do darshans, Mumbai Darshan, Jeevan Darshan. We do Jeevan Darshan. बहुत सारे लोग हमारे जीवन में इसी प्रकार से करते हैं, जीवन दर्शन हमारा हो जाता है। Small ordinary things. छोटी सी साधारण बातें हैं। Have you wondered why small things become so complicated? क्यों आपने कभी सोचा कि छोटी सी साधारण बात इतनी दुविधाजनक कैसे बन जाती Why है? ordinary things that could have been just done quickly turn into such, humongous tasks in your life? क्यों ऐसे साधारण बातें जो बहुत ही आसानी से की जाने वाली थी आपके जीवन में बहुत ही अचंभित और बहुत ही कठिन ऐसा लक्ष्य बन जाता है? Because you're not listening to your guide. क्योंकि आप आपकी गाइड को सुनते नहीं हो। Hallelujah. हालेलुया। He's going to lead you direction by direction, step by step, to every blessing that God has kept in store for you. और परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है उसके प्रति कदम दर कदम, दिशा दर दिशा वो आपको चलाने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। So what are we going to do this week? और इसलिए इस सप्ताह हम क्या करने वाले This हैं? week we're going to try to get sensitive to the voice of the और Holy इस Spirit. सप्ताह हम पवित्र आत्मा के प्रति, उसके वाणी के प्रति हम संवेदनशील So how do बनेंगे। I get sensitive to the voice of the Holy Spirit? कैसे मैं पवित्र आत्मा की आवाज की ओर संवेदनशील बन सकता हूँ? Start talking to Him. That's going to be the first step. पवित्र आत्मा से बात करने लगो, यही पहला कदम है। Start talking. उससे बात करने As लगो, you talk to a friend, जैसे आप एक मित्र से बात करते हो, start talking to him. पवित्र आत्मा से बात करने लगे। Start talking to him. पवित्र आत्मा से बात करें, Start asking his opinions. उसकी राय को आप पूछिए, मांगिए। What do you think about this? इस विषय के बारे में आप क्या कहते हो पवित्र I'm आत्मा? planning to do this today. मैं आज ऐसी बात को करने का प्रयत्न सोच रहा हूँ। आपकी राय क्या है For the प्रभु? women in the house, और महिलाएं जो घर पर रहती हैं, as you go about your housework, जैसे आपके काम, घर के काम काज में आप get जाते हैं, into the
kitchen to cook something, आप रसोई में कुछ बात को पकाने के लिए जाते हो let your cooking not be dependent on what's in the fridge, और आपका भोजन पकाना जो फ्रिज में है उसके आधार पर न होने दो, but even ask the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा को भी इस विषय में पूछे, what do you think about me cooking this today for my और family? प्रभु आप मेरे बारे में मेरे परिवार के लिए मैं क्या पकाऊं ऐसा आप सोचते The हो more पवित्र and more you engage in a dialogue with the Holy Spirit, that clearly you will start receiving directions from the Holy Spirit. जितना ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ आप बोलने में उन बातों को बोलने में आप व्यस्त होंगे उतना ही ज्यादा आपको दिशा दर्शाने में पवित्र आत्मा के द्वारा आप सफाई पाओगे When that becomes a practice, और जब ये आपकी जो अभ्यास हो जाता है आपका then you stop talking तब आप बोलना बंद कर देते and हो you will only start listening. और केवल आप सुनने लगोगे Hallelujah. Hallelujah. Because the ears of your spirit are now tuned to that voice of the Holy Spirit. क्योंकि अब आपकी आत्मा का कान जो है पवित्र आत्मा की वाणी के लिए बहुत ही चौका हो जाएगा When that happens, जब ऐसा होता है as the word of God says, जैसे प्रभु का वचन कहता है praise be to our Lord Jesus Christ, और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो who leads us in a triumphal procession in Christ. और जो हमें मसीह में जयवंतता के तौर पर जयवंतता में चलाता है Every step is going to be a step of victory. और हर एक कदम जो है जय का कदम होगा Hallelujah. Hallelujah. Every day is going to be a day of victory. हर एक दिन जो है वो जयवंत दिन होगा Why? Because now your ears are tuned to the Holy Spirit. क्यों क्योंकि अब आपके कान जो है पवित्र आत्मा की वाणी की ओर लगे So this रहेंगे is what we're going to do this week. और यही बात इस सप्ताह हम करने वाले हैं We're going to engage into holy conversations. और हम पवित्र बातचीत में अपने आप को हम व्यस्त रखने We're वाले going हैं to ask the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा से मांगेंगे We're going to पूछेंगे consult Him. हम उसकी सलाह लेंगे We're going to inquire Him. हम उससे पूछताछ करेंगे Train our ears to listen to His voice. अपने कानों को उसकी आवाज को सुनने के लिए प्रशिक्षित करो Hallelujah. Hallelujah. Next week I'm going to continue speaking about the Holy Spirit. अगले सप्ताह में पवित्र आत्मा के बारे में लगातार बताना How चाहता He हूं helps us in us achieving our किस inheritance. प्रकार से हमारे मिरास को प्राप्त करने में वो हमारी मदद करता है Hallelujah. 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 Are you blessed this morning? क्या सुबह का समय आप आशीर्वादित हुए हो Can I see the hands of those who are blessed this morning? जो आशीर्वाद हुए हैं आज सुबह का समय में उनके हाथ देखना Praise चाहूंगा God. Hallelujah. 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 Walking in continuous victory is possible when our ears are attentive to the voice of the Holy Spirit. जब हमारे कान पवित्र आत्मा की वाणी की ओर सतर्क होते हैं तो जयवंत लगातार के जयवंतता में चलने में ये बहुत ही सामान्य हो जाता Let's है all just rise up to our आइए हम सब खड़े हो जाएं